Hello, the students of class 12 and those who are preparing for medical and engineering entrances. I, Abhay Kumar, going to solve the problems of the book Concept of Physics, which is written by S.C. Verma. The chapter is electric field and potential, and I am present with part 4. Starting from problem 31, two particles A and B, each having a charge capital Q, are placed at a distance d apart. Where should a particle of charge small q be placed on the perpendicular bisector of AB so that it experience maximum force, and what is the magnitude of this maximum force? इस प्रॉब्लम में दो चार्ज हैं प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, दोनों को दो पॉइंट ए और बी पर लोकेटेड है जिनके बीच का डिस्टेंस डी है. ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन एंड ओपी इज द परपेंडिकुलर बिसेक्टर of the line AB. X is the distance of point P where the system of two charges plus Q and plus Q will experience maximum force on that a small charge, charge a small q which is placed at point P of the perpendicular bisector. X इसके perpendicular bisector पर AB के परपेंडिकुलर बिसेक्टर पर एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस इसके सेंटर से x है, और यहाँ पर जो चार्ज P पॉइंट पर रखा है परपेंडिकुलर बिसेक्टर पर प्लस Q, या कितना जो है ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन दोनों सिस्टम ऑफ टू चार्जेज प्लस Q एंड प्लस Q विच आर लोकेटेड एट पॉइंट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली. ये कैलकुलेट करना है कितना मैग्नीट्यूड ऑफ उसका फोर्स होगा. तो इसके लिए पॉइंट P जो परपेंडिकुलर बिसेक्टर पर है उसका AB लाइन जो है उसके सेंटर से डिस्टेंस x मान लेते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट्स सॉल्यूशन. लेट OP इक्वल टू x और डिस्टेंस जो है गिवन AB इक्वल टू D. O is the midpoint of the line AB, so distance to AO is equal to BO is equal to D by 2. AO is equal to BO equals to AB upon 2, that is D upon 2. And this distance AB and BQ both are same, both are equal, which is given by root under D by 2 square plus x square according to Pythagoras theorem. AP square is equal to AO square plus OP square. In the same triangle, in the other triangle, BP square is equal to OP square plus BO square. तो दोनों जो डिस्टेंस होगा डायगोनल डिस्टेंस, ये आपका जो डिस्टेंस होगा ये AP और BP ऑब्लिक जो डिस्टेंस है वो सेम होगा फ्रॉम द ज्योमेट्री. Therefore AP is equal to BP is equal to root under D upon 2 square plus x square. Now using the formula of electric field intensity at a point due to a point charge plus q is given by 1 by 4 pi epsilon naught q upon distance square r square. Here distance is AP and from charge the plus q placed at B, the distance is BP. So distance AP and BP दोनों के कारण हम निकाल लेंगे. अब फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इस फोर्स को जो है प्लस क्यू चार्ज जो रखे हैं P पर उसको प्लस क्यू चार्ज जो है रिपेल करेगा. तो ये FA का जो डायरेक्शन होगा उसको हम F मान लिए हैं. FA और FB दोनों फोर्स सेम होगा क्योंकि जो चार्ज पॉइंट P पर जो चार्ज है प्लस क्यू वो सेम है. सो FA इक्वल टू FB यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वी हैव FA इक्वल टू FB. डायरेक्शन ऑफ FA एंड FB, FA का डायरेक्शन इधर है और FB का डायरेक्शन एलोंग AP प्रोड्यूस और FB का डायरेक्शन एलोंग BP प्रोड्यूस. FA इक्वल टू FB इक्वल्स टू, इसको हम F मान लेते हैं दोनों को, F से इक्वल्स टू 1 by 4 पाई एप्सिलम नॉट
into multiplied by q mod of a small q, that is q a small q, a distance, this is d square by 2 l square plus x square का whole square, that is d square d upon 2 square प्लस एक्स स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, दैट इज रूट समाप्त हो जाएगा इससे पावर थी स्क्वायर से, तो केवल इतना होगा. दिस इज इक्वेशन 1. डायरेक्शन ऑफ एफ along AP produce, AP line produce, and direction of FB along BP line produced. Now we should take component of this both forces, F and F, FA and FB. This is FA is equal to F और FB है, FB इज ऑल्सो इक्वल टू F. मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, प्लस Q और स्मॉल q, और यहाँ जो है डिस्टेंस भी सेम है AP और VP. तो कंपोनेंट इसका जो होगा केवल F साइन थीटा सर्वाइव करेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका FA का F कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री से ये भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो F कॉस थीटा. और इधर भी जो है ये F है, ये थीटा है तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा. तो F का कंपोनेंट इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में F cos थीटा, राइट डायरेक्शन में F cos थीटा, बोथ विल कैंसिल ईच अदर. सो वी विल लेफ्ट विथ ओनली टू कंपोनेंट्स, F sin थीटा of FA and FB other component of force FB, that is F sin theta, which will sum up to give F sin theta plus F sin theta. तो वही बचेगा, F cos थीटा और F cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. तो सो द टोटल फोर्स हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग. सो टोटल फोर्स एक्टिंग on the charge small q placed at point P which lies on the perpendicular bisector. Point P जो है इस AB सिस्टम, AB लाइन के परपेंडिकुलर बिसेक्टर पर है, एट पॉइंट P, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन पर है. पॉइंट P दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट, equatorial, a point lies on the perpendicular bisector is called equatorial point and the line is called equatorial line. is total force हो गया F equatorial लिख सकते हैं, F EQ stand for equatorial, that is F sin theta only, it is shown in the figure in the diagram. F sin theta plus F sin theta is equal to 2F sin theta. Now sin theta from this figure we can obtain sin theta perpendicular x upon hypotenuse AP, which is root under d upon 2 square plus x square. Or value of F is also given equation 1. I am putting the value of F epsilon naught q, a small q, upon d upon 2 square plus x square, and sin theta from this figure, sin theta x upon root under d by 2 square plus x square, x upon root under d by 2 square plus x square. ये सेम टर्म है दोनों ब्रैकेट के अंदर, रूट के अंदर जो टर्म है और ब्रैकेट इसमें, इस ब्रैकेट के अंदर टर्म सेम है. रूट है तो पावर हाफ है, तो हाफ है, इसका पावर 1, तो हाफ इंटू 1/2 पावर, दोनों ऐड होकर के 3/2 हो जाएगा. यहाँ से 2 से 2 के 4 कैंसिल हो गया, इसका 2 पावर बचा नीचे. 1/2 पाई एप्सिलम नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्मॉल क्यू अपॉन d/2 स्क्वायर plus x square 3/2 multiplied by x. This is the total force acting on the equatorial line. So it is F equatorial here. This is equation 2. Now maximum force, we have to calculate maximum force. So for maxima or minima, we know that dy by dx for either maxima or minima, first derivative of y with respect to x is 0. For maxima or minima,
we have read in calculus. तो सिमिलरली फोर्स इक्वेटोरियल फोर्स total force acting on point P lies on the equatorial line will maximum if differentiation of df differentiation of this force df eq upon dx is equal to 0. So we should put here for maximum force d equal to d by dx of f equatorial is equal to 0. अब हम इसको आगे देखते हैं, आगे करते हैं इसको बोर्ड साफ करने के बाद इसको. Hence for the maximum force we have d of f equatorial upon dx is equal to 0 or d upon dx f equatorial is here in equation 2 1 by 2 pi epsilon naught multiplied by capital Q small q upon d upon 2 square plus x square 3 by 2 into x is equal to 0 or this constant should be taken out from the integral from the bracket or 1 by 2 pi epsilon naught q capital Q small q into dy by dx of x upon d by 2 square plus x square 3 by 2. Now differentiation of the form u by v numerator upon denominator division of quotient form. इसका स्क्वायर हो जाएगा नीचे, उसका हम काम करते हैं और 1 by 2 pi epsilon naught capital Q into a small q and after differentiation नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो स्क्वायर से हाफ जो है पावर कैंसिल हो गया तो फिर डी क्यू बचेगा डी बाई टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका पावर क्यू. अब ऊपर में डिनोमिनेटर दैट इज डी अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 by 2 into dc of numerator that is d upon dx of x 1 और बीच में माइनस साइन. अब dc ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो है कांस्टेंट है एंड dc ऑफ डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 by 2 डिनोमिनेटर का dc ले रहे हैं तो 3 by 2 वाले पावर फॉर्म में d अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर then 3 by 2 nx n minus 1 using the formula of differentiation. n पहले मल्टीप्लाई हो गया इस फंक्शन के पहले, अब 3 by 2 minus 1 that is 1 by 2 एंड अब d तो कांस्टेंट है, d डिस्टेंस इज कांस्टेंट, x वैरी कर सकता है तो x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 2x सिंपली 2 and 2 will cancel out. Now 1 by 2 d by 2 square plus x square by x square power half जो है should be taken out from the bracket. यहाँ केवल d स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा पावर 1 पावर प्लस मल्टीप्लाइड बाई इतना माने हाफ d बाई 2 स्क्वायर प्लस हाफ इक्वल टू 3 by 2 हो जाएगा. और दिस टर्म वी शुड ऑल्सो टेकन आउट द ब्रैकेट और 1 by 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल q d बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर q और फिर ब्रैकेट में d अपॉन d ब्रैकेट से बाहर करेंगे d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ 1 by 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी है और इसमें भी प्रेजेंट है
तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा केवल एक पावर बचेगा इसका, वन पावर, दैट इज वी शुड राइट हेयर 1d/2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओनली, और माइनस ये बाहर ही हो गया, तो x इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इजकल टू 0, एंड आउट ऑफ द ब्रैकेट टर्म जो है ये शुड नॉट इक्वल टू 0, ये सब 0 नहीं होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ब्रैकेट टर्म 0 होगा, ब्रैकेट वाला जो टर्म होगा वो 0 होगा। देयरफॉर d/2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर दैट इज माइनस 2x स्क्वायर इजकल टू 0। अब x का वैल्यू इसमें आ जाएगा, x का वैल्यू और 2x स्क्वायर इजकल टू d/2 स्क्वायर और x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई d/2 स्क्वायर, देयरफॉर x इजकल टू 1/√2 इंटू d/2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, वी कैन राइट हेयर 2√2। x का वैल्यू आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको इक्वेशन 2 में हम रख देंगे x का वैल्यू, तो मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। अब बोर्ड मिटाने के बाद जो है हम उसको नोट करते हैं। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q 8√2√3 का पावर Q, √3 का पावर Q जो है हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू √3 3√3 अपॉन 2 का पावर √2 का पावर Q हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू √2 दैट इज 2√2 इंटू d स्क्वायर, √2 will cancel out, 8 multiplied by 2 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q 8, 2 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 हो जाएगा ये, और ये 3√3 का वैल्यू 1.732। अब 16 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करके 16 में डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा आपका 5.08 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन इंटू d स्क्वायर, नीचे में इंटू d स्क्वायर। दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट P which lie on the equatorial line of AB at distance small x from its center. This is the final result. This is the total force, and total force, resultant force, total force acting on charge Q, acting on a small q, charge small q. This is the result. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। थोड़ा ये लंबा प्रॉब्लम था, कैलकुलेशन इसमें थोड़ा समय लगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Now problem number 32, which is also related to problem number 31, in which two particles A and B each carrying a charge capital Q are held fixed with a separation D between them। जैसा कि प्रॉब्लम 31 में था, दो पॉइंट चार्ज था कैपिटल Q और D डिस्टेंस पर था। एक पॉइंट A पर था, दूसरा AB पर, तो AB लाइन पर के, AB लाइन की एक्सट्रीम पर दोनों चार्ज था। At particle C having mass small m and charge small q is kept at the middle point of line AB। अब से एक पार्टिकल C को जो है दोनों AB लाइन के मिडिल पॉइंट पर रखा जाता है। If it is displaced, मतलब means if particle C is displaced through a distance x perpendicular to AB, what would be the electric force experienced by it। अब उस पार्टिकल C को जो कि AB लाइन के मिड पॉइंट पर रखा हुआ था, अब उसको उसके x डिस्टेंस पर उसके परपेंडिकुलर बिसेक्टर पर उसको रख दिया गया। इफ इट डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस स्मॉल x परपेंडिकुलर टू AB, मतलब परपेंडिकुलर बिसेक्टर पर वो चला गया x डिस्टेंस पर AB के सेंटर से, जो सेंटर पर C पर जो पॉइंट था पार्टिकल था,
मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर चला गया, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई इट? तो पहले फर्स्ट का ही पार्ट का आंसर कर लेते हैं, क्योंकि वो रिलेटेड है 31 से, एंड देन इट्स पार्ट बी एंड सी विल बी सॉल्व्ड। तो यहाँ सेम केस हो गया उसमें। तो उसमें जो फोर्स होगा इस ए का, वो फोर्स था इक्वेटोरियल पॉइंट पर पी पर जो टोटल फोर्स था F इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन D/2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 multiplied by x. This is the force which was given in equation 2 of problem number 31. तो सेम चीज है, I have already derived it. So this is the answer of part 1. Now coming to its second part, assuming a small x is too much smaller than a small d. A small d is the distance between two charges placed at point A and B. मतलब डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन इज स्मॉल डी, सो दैट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब ये फोर्स एफ जो होगा एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। ये करना है, कहने थी ये शो करना है अगर एक्स इज टू मच स्मॉलर देन डी। स्मॉल एक्स जो पार्टिकल सी का डिस्टेंस हो गया उसके सेंटर से, ए बी लाइन के सेंटर से, वह जो सेपरेशन है लाइन ए बी का या दो चार्जेज का कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू जो ए और बी पर रखा हुआ है, उससे काफ़ी स्मॉल है पार्टिकल सी का डिस्प्लेसमेंट इक्वेटोरियल ए बी के परपेंडिकुलर लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो इफ सेकेंड पार्ट का बी का आंसर करते हैं एक्स टू मच स्मॉलर देन डी, देन वी कैन नेग्लेक्ट एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ in comparison to d/2 square in the denominator of this equation, neglecting x square in comparison to इसको इक्वेशन नंबर रोमन में 1 दे देते हैं इसका। ऐसे तो इक्वेशन नंबर 2 था 31 का। इन कंपेरिजन टू d/2 स्क्वायर in the above equation, that is equation 1, in the above equation, comparison to d/2 square in the denominator, यहाँ ऊपर में न्यूमरेटर में x है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। जहाँ d/2 टर्म प्रेजेंट है उसके कंपेरिजन में x को नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ x इज टू मच स्मॉलर देन स्मॉल d है। इन द डिनोमिनेटर ऑफ the above equation we get f equals to 1/2 pi epsilon naught multiplied by capital Q small q upon, अब ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो टर्म है इसको छोड़ देंगे, तो ये केवल d/2 का होल स्क्वायर, उसका पावर 3/2 हो जाएगा। मतलब d/2 का पावर होल क्यूब, स्क्वायर से हाफ पावर, मतलब स्क्वायर रूट ये समाप्त हो जाएगा, कैंसिल। तो d/2 का पावर केवल क्यू बचेगा। इन दैट सिचुएशन d/2 का पावर क्यू दैट इज 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट dq8 ऊपर चला जाएगा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और एक्स भी टर्म था इसमें लास्ट में, मल्टीप्लाइड बाई एक्स से प्रोपोर्शनल शो भी करना है, यहाँ हो जाएगा dq मल्टीप्लाइड बाई एक्स, दैट इज 4 हो गया, दैट इज 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट dq मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और f इक्वल्स टू, ये चीज़ कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d, डिस्टेंस जो है दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है जो a और b पर रखा हुआ है, उसके बीच का डिस्टेंस है, तो भी कांस्टेंट है, तो सारा चीज़ कांस्टेंट हो गया। तो k इंटू एक्स वेयर
4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पाई स्मॉल एप्सिलॉन नॉट डी इक्वल टू के, कांस्टेंट है ये सब, आपको शो करना था फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये शो हो गया, दैट इज फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल सी फ्रॉम द सेंटर ऑफ लाइन ए बी, तो ये शो करना था सेकेंड में, सो दैट फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये शो हो गया, दिस इज प्रूव्ड, शो हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट सी देखना है। नाउ सी इट्स पार्ट सी ऑफ प्रॉब्लम 32। इसमें है निकालना है कि किस कंडीशन में, अंडर विच कंडीशन द पार्टिकल सी विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन if it is released for such a small distance, और टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशंस ऑफ पार्टिकल का भी उसके बाद निकालना है। तो आप जानते हैं ओसिलेशन में हम लोग पढ़े थे 11th में ओसिलेशन चैप्टर में कि पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन होता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, and displacement is opposite to the direction of force. Displacement force is force is always directed towards the fixed point of the line. That is a sign of f and x are opposite to each other. Minus sign we should consider in that case. तो ये हमने b में लाया है f proportional to x, तो ये कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो दिस इज द कंडीशन, इफ force proportional to displacement, we should give here minus sign which indicates that direction of force is always opposite to the direction of displacement. माइनस का मतलब है कि फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है, बस इतना ही। दैट इज फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट, यही कंडीशन हो गया जो बी के लास्ट में जो ये शो करना था। द पार्टिकल एग्जीक्यूट, पार्टिकल सी विल एग्जीक्यूट, परफॉर्म करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM एग्जीक्यूट करेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल सी का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमको निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला जो फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाई एफ इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये भी हम लोगों ने 11th में पढ़ा था ऑसिलेशन चैप्टर में। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है, और फोर्स हमेशा स्ट्रेट लाइन के जो मिड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, उसके टुवार्ड्स एक्ट करता है, भले ही डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट। और हेयर एफ इज 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। इट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स in part B of this problem. It is also written on the board as equation 2 equals to minus, we can ignore here, ये केवल डायरेक्शन को शो करता है, तो माइनस यहाँ केवल नेग्लेक्टिंग माइनस साइन हेयर, नेगेटिव साइन। और 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इक्वल्स टू एम, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी विच इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड स्क्वायर। इससे टाइम पीरियड हमको मिल जाएगा, टी इज टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल सी ऑफ सी, पार्टिकल सी का है टाइम पीरियड। और 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इक्वल टू एम 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू एक्स। और वी हैव टू कैलकुलेट टू फाइंड आउट टाइम पीरियड, तो टी स्क्वायर को यहाँ इसको एलिमिनेट कर लेते हैं इससे, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ,
पाई स्क्वायर एम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम पाई स्क्वायर इंटू पाई पाई क्यू इप्सिलम नॉट डी क्यू अपॉन टी स्क्वायर को यहाँ ले गए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू मल्टीप्लाइड बाई एक्स देयरफॉर टी इक्वल टू therefore t इक्वल टू हाफ हो जाएगा सबका पाई क्यू इप्सिलम नॉट डी क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स पावर हाफ। तो ही आपका एक्सप्रेशन आ गया और दिस इज द रिप्रेजेंट द टाइम पीरियड ऑफ। और यहाँ भी जो है एफ में जो फोर्स था उसमें भी सॉरी यहाँ एक छूट गया है, एक्स आप यहाँ से कैंसिल करा लें, यहाँ एक्स नहीं रहेगा, एक्स इसमें छूट गया, मिस कर रहा था, उसमें लिखे थे दैट इज हाफ। दिस इज द आंसर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल सी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब लास्ट प्रॉब्लम जो है कूलम्ब फोर्स पर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स पर आधारित और कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रिक पर चार्ज पर बेस्ड लास्ट प्रॉब्लम है वो। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का प्रॉब्लम देखेंगे और डाइपोल का जो रिमेनिंग पार्ट्स आएगा उसमें। ये लास्ट प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 33 which is related to the previous problem 32. Repeat the previous problem if the particle C is displaced through a distance small x along the line AB. वहाँ था पार्टिकल को डिस्प्लेस किया गया था AB लाइन के परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल लाइन पर, और यहाँ जो है इसी लाइन के लॉन्ग जो है इसको AB के लॉन्ग ही सेंटर से इसको डिस्प्लेस कर दिया गया है x डिस्टेंस से पार्टिकल C को, जिस पर कि चार्ज प्लस क्यू है AB के लाइन के लॉन्ग। तो इसमें अब निकालना है फोर्स कितना काम करेगा, टोटल पहले फोर्स निकाल लेंगे, उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल निकाल लेंगे। तो फोर्स जो है ए पर प्लस क्यू चार्ज के कारण जो फोर्स काम करेगा, यहाँ प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा एलोंग लाइन ए बी, एलोंग राइट डायरेक्शन। अब प्लस क्यू चार्ज जो बी पर है वह प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल सी का जो चार्ज प्लस क्यू है उसको रिपेल करेगा, तो उसका डायरेक्शन एफ बी हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल सी ऑफ चार्ज क्यू ड्यू टू बोथ चार्जेज plus q and plus q placed at points A and B respectively will be difference of two forces. So now first we should evaluate the value of Fa and Fb using Coulomb's law. Now solution. Magnitude of force Fa. Fa means force acting on particle C of charge plus q due to charge plus q placed at point A. C पर जो पार्टिकल जिसका चार्ज प्लस क्यू है वह A पर पार्टिकल प्लस क्यू के कारण जो फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका डायरेक्शन राइट साइड के लॉन्ग है, उसको कैलकुलेट मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलम नॉट मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ स्मॉल क्यू दैट इज क्यू स्मॉल क्यू, और डिस्टेंस इज AC which is d/2 plus x. AC distance is AO plus OC that is d/2 plus x, d/2 plus x square. This is 1 in this case, and similarly FB mod force acting on charged particle C at distance x from the midpoint of the line due to charge plus q placed at point B which is also 1/4 pi epsilon naught q small q। अब ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस B से C का डिस्टेंस हो जाएगा पूरा d/2 है, वो भी d/2 है, उसमें से x को माइनस कर लेंगे तो d/2 माइनस x हो जाएगा डिस्टेंस CB, d/2 माइनस x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, इससे रिजल्टेंट जो होगा वो डिफरेंस हो जाएगा। और इसमें एफ बी जो होगा, इसका डिनोमिनेटर स्मॉल है डी माइनस टू स्क्वायर, तो ये लार्ज हो जाएगा, एफ बी लार्ज हो जाएगा और एफ ए जो है स्मॉलर होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर डी बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर जो है ज़्यादा है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है, जब डिस्टेंस बढ़ने के साथ फोर्स घटता है। डी बाई टू प्लस एक्स डिस्टेंस इज मोर देन दैट ऑफ डी बाई टू माइनस एक्स, सो हेंस द रिजल्टेंट फोर्स acting on C, the particle C is magnitude of resultant force है, इसलिए F mod is equal to F B is larger than F A, so we have F B minus F A, डिफरेंस लेना होगा, दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए। और यहाँ एफ पी और एफ ए का वैल्यू है 1/4 एप्सिलम नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डी बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एफ एज 1/4 एप्सिलम नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डी बाई टू अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ 1/4 एप्सिलम नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू विल टेकन आउट ऑफ द ब्रैकेट बिकॉज due to common factor। 1/4 epsilon naught capital Q small q 1 upon d by 2 minus x square minus 1 by d by 2 plus x square। Now we have 1/4 epsilon naught q multiplied by d। एलसीएम दोनों डिफरेंट टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एलसीएम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर डी बाई टू स्क्वायर अब माइनस एक्स स्क्वायर, तब का फिर होल स्क्वायर है उसको। अब यहाँ डी बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर डी बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में 1 में डी बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यार अब डी बाई टू इससे डिवाइड करें तो बचेगा डी माइनस टू डी बाई टू माइनस एक्स होल स्क्वायर equals to 1/4 epsilon naught capital Q small d capital Q into a small q, sorry, a small q, और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म है, तो d बाई टू स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी बाई टू इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जो माइनस टर्म आएगा ब्रैकेट तो ब्रेक कर देंगे, तो माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस हो जाएगा, डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस आएगा लेकिन आगे माइनस है, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, तो प्लस 2 इंटू डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन आगे माइनस है, ब्रैकेट तोड़ने के बाद माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ डी बाई टू प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर विल कैंसिल आउट, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर विल ऑल्सो कैंसिल आउट, वी विल लेफ्ट विथ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो डी एक्स प्लस डी एक्स दैट इज 2dx दैट इज 1/4 एप्सिलम नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू मल्टीप्लाइड बाई, और नीचे में जो टर्म है आपका अपॉन डी बाई टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, और ये टर्म हो गया क्यू कैपिटल क्यू 1/4 एप्सिलम नॉट 1/, कैन बी रिटन एज 1/4 एप्सिलम नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और यहाँ बचा डी एक्स और यहाँ प्लस डी एक्स 2dx
into 2dx upon d by 2 square minus x square. This is the magnitude of force, capital F, magnitude F mod is equal to F. This is the total force acting on the particle. तो ये टोटल फोर्स हमारा निकल गया इतना, और इसमें जो है 2 से इसको आप कैंसिल करा सकते हैं, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू डी एक्स, डी इंटू एक्स नॉट डी एक्स, डी इंटू एक्स है ये, डी अलग टर्म है एक्स अलग टर्म है, डी इंटू एक्स अपॉन डी बाई 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर। यही आपका आ गया नंबर इक्वेशन नंबर 3, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। नाउ वी शुड अप्लाई द कंडीशन, इफ x इज टू मच स्मॉलर देन d, then we will get the expression for time period. Now after determining the value of force, total force acting on the particle C, we should apply the condition as it was applied in problem number 32, if displacement of the particle C is too much smaller than d by 2 square, d square. Here we shall also we can also neglect here x square in comparison to d by 2 square in the denominator of equation 3. So now condition is, if we are applying the previous condition, if x is too much smaller than d, then neglecting equation x square in comparison to d by 2 square in equation 3 in its denominator, माने x का वैल्यू अगर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल c का वैल्यू d जो सेपरेशन है दोनों चार्ज के बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में या दोनों लाइन का सेपरेशन है उससे काफ़ी स्मॉल हो, तो हम एक्स स्क्वायर को d बाई 2 के कंपेरिजन में उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्टिंग एक्स स्क्वायर इन कंपेरिजन टू d by 2 square in the denominator of equation 3, we have F equals to total force acting on the particle, resultant force, net force acting on the particle. ये नेट फोर्स है, नेट फोर्स यहाँ भी नेट फोर्स था पार्टिकल सी पर, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल सी, जिसको कि ए बी लाइन के लॉन्ग ही सेंटर से डिस्प्लेस किया गया है एक्स डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल सी। एफ इक्वल टू, अब यहाँ हम देखते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू डी इंटू एक्स अपॉन, अब नीचे वाला इसको, यहाँ ऊपर वाला इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ जो है d माइनस है, यहाँ पर ये करेंगे d बाई 2 माइनस इतना, इस टर्म को करेंगे d बाई 2 के कंपेरिजन में। तो d बाई 2 ये नेगलेक्ट हो गया, एक्स स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया, तो बचेगा d बाई 2 का स्क्वायर डेट इज d बाई 2 का पावर 4 हो जाएगा, डेट इज 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू d अपॉन x, d मल्टीप्लाइड बाई x, d टू द पावर 4 हो जाएगा, 2 पावर 4 दैट इज 4 16 ऊपर चला जाएगा, 2 से 8 टाइम कैंसिल हो गया, 8 क्यू स्मॉल क्यू d, यहाँ d से पावर ये कैंसिल होगा, एक पावर डी क्यू बचेगा, क्यू कैपिटल क्यू 8 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू x अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल x 8, दिस इज द नेट फोर्स।
in the applying the condition that x is too much smaller than d. This is equation number 4 here. Now we said we have to determine the time period of the oscillation of the particle C. So f is, we know that the force acting on the particle in simple harmonic motion is f is equal to minus m omega square x, as is done in problem number 13. In f is equal to in SHM in simple harmonic motion का कंडीशन आती है एक्सप्रेशन का फोर्स f इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. माइनस जो है फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द फिक्स पॉइंट एंड इट इज अपोजिशन टू द अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. तो और हेयर एफ द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन 4 इज और 8 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन पाई एप्सिलम नॉट डी क्यू इजकल टू एम ओमेगा. ओमेगा इज 2 पाई बाई 2. टाइम पीरियड वी हैव टू डिटरमाइन. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 बाई टी होता है, तो 2 पाई अपॉन टी होता है. और नेग्लेक्टिंग माइनस साइन, माइनस केवल डायरेक्शन को बता रहा है, सो वी शुड नेग्लेक्ट हेयर नेगेटिव साइन. और 8 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन पाई एप्सिलम नॉट डी क्यू equals to m multiplied by 4 pi square upon t square into x. 4 से यहाँ कैंसिल हो गया, मैं 4 से कैंसिल हो गया 8, तो यहाँ 2 बचेगा. और therefore we have to calculate टी स्क्वायर को यहाँ एलिमिनेट करके ऊपर ले आते हैं. टी स्क्वायर इज हेयर फ्रॉम द डिनोमिनेटर पाई स्क्वायर इंटू पाई क्यू एम पाई क्यू पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू इप्सिलम नॉट आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी क्यू इंटू एक्स. एक्स इज ऑल्सो कैंसिल आउट हेयर, both x will also cancel out upon 2 capital Q a small q only. Therefore x equals to therefore t equals to m pi q epsilon naught 2 q capital Q small q into dq power half or root under m pi q epsilon naught to capital Q this is the result time period of the particle C, time period of oscillation of particle C, of oscillation of particle C. ये हो गया, टाइम पीरियड हो गया, तो ये इसका पूरा केस डील हो गया. और इलेक्ट्रिक फोर्स पर जो प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो गया. उसमें मोस्टली प्रॉब्लम हमने कर दिया है 1 से लेकर के 33 तक. कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक क्वांटाइजेशन चार्ज शुरू में था, वो सब हो गया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पर जो प्रॉब्लम है उसको हम देखेंगे अगले पार्ट से. थैंक यू वेरी मच.